Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer our today's topic is MS Excel 2013 Introduction. So let's start the chapter. Our learning objectives are Introduction, starting MS Excel, components of MS Excel window, some important terms, selecting, deselecting cell range, entering data, saving a workbook, closing a workbook, opening a workbook, adding a new worksheet, renaming a worksheet, deleting worksheet. Now, introduction. Microsoft Excel is a spreadsheet program. It is used for storing data in the form of rows and columns. It uses the concept of displaying data in the form of tables. Excel is used to apply formulas and functions to perform calculations on the data, numbers and text, and present the data in a variety of professional looking charts. Some of the main advantages of using Excel are: first, calculation. Numbers and calculations are managed efficiently. Formula once written can be easily copied to the rest of the worksheet. If any changes are made in the values, the recalculation is automatically performed. Second, data management. Data is collection of values. Data can easily be created, analyzed and maintained in Excel. Finding a value and sorting of the data is also easy. Third, charts. The pictorial representation of a data is called a chart. You can create a variety of charts like pie chart, column chart, bar graph, etc. You can also make use of 3D effects. तो बच्चों यहाँ पे MS Excel के बारे में बताया गया है कि MS Excel जो है वो क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, ये यूज़ करता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. मतलब आप यहाँ पे टेबल्स को ऐड करके क्या करते हो, अपने डाटा को इसमें एंटर करते हो. एक्सेल जो है वो अप्लाई करता है आपके फॉर्मूलाज एंड फंक्शन को, ताकि आप उसमें कैलकुलेशन को क्या कर सको, परफॉर्म कर सको ऑन द डेटा. ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी बताए गए हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एक्सेल को यूज़ करने के. सबसे पहला तो आप इसमें इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार जो फॉर्मूला राइट हो जाता है, उसमें चला जाता है, तो वो सब में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन को दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे सम्स वगैरह होते हैं, तो आपको अगर सम आपने एक सेल पे कॉपी कर दिया और बाकी में आप कॉपी कर दोगे तो वो सब में अप्लाई हो जाएगा, आपको रीअप्लाई करने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी. सेकंड, आप इसमें डेटा मैनेज करके रख सकते हो. ठीक है, अब डेटा क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है, तो डेटा को आप इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और चाहो तो उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है. चार्ट्स. चार्ट्स क्या होता है, आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी डाटा का. ठीक है, अब इसके थ्रू आप इजीली चार्ट्स भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. सपोज आपने डाटा एंटर किया, अब जो डाटा आपने डाला है उसके बेस पे आप एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और उसको आप एक 3D लुक भी दे सकते हो. ठीक है. फैक्ट. Many types of spreadsheet programs are available. Some of the popular spreadsheet are Lotus, Calc, Apple, Numbers, G-Numeric, etc. ठीक है. अब MS Excel के अलावा भी यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो. तो इस तरह से उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं. Now starting MS Excel. In Windows 10 operating system, click on the Start button and search for the MS Excel application. If it is already installed in your system, it will appear like the one given ahead. Double tap on the icon to open the Excel. When the Excel opens, an interface will appear on your screen. From there, you can create a new workbook. Choose a template and access your recently edited वर्कबुक्स. बच्चों यहाँ पे आपको अगर स्टार्ट करना है MS Excel, तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया है कि आप विंडोज़ 10 में आप कहाँ जा सकते हो, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो. ठीक है, और वहाँ पे एक सर्च बार आएगा, वहाँ पे आप MS Excel एप्लीकेशन को क्या करोगे, सर्च करोगे. अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो आपके वहाँ पे ये इजीली दिख रहा होगा, मतलब आपकी स्क्रीन में ये इस तरह से दिख रहा होगा, जैसे ये आइकन यहाँ पे दिख रहा है. तो आप सिंपली इसमें डबल क्लिक भी कर सकते हो. ठीक है, जब आपकी एक्सेल ओपन हो जाती है तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपकी
वर्कशीट का इंटरफेस होता है। वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो अपनी वर्कबुक, टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो और आप अपनी रिसेंटली एडिटेड वर्कबुक्स को भी ओपन कर सकते हो। नोट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, टाइप एक्सेल इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की। अब आप अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके वहाँ पे आप एक्सेल टाइप करोगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो इस तरह से जब आप एंटर की करोगे तो इस तरह से भी आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हो। न्यू वर्कबुक फाइल सिलेक्शन विंडो अपीयर्स, इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू वर्कबुक्स इन द थंबनेल व्यू। फिफ्थ, click on blank workbook thumbnail option. The Microsoft Excel window appears with a blank workbook. A temporary name book 1 is assigned to the workbook. Look at the component of MS Excel 2016 window. तो बच्चों यहाँ पे जब आप अपनी MS Excel फाइल को ओपन कर लेते हो तो आपसे न्यू वर्कबुक सिलेक्शन के बारे में पूछा जाता है। उसमें आपका सिलेक्शन विंडो अपीयर हो जाता है, तो उसमें डिस्प्ले होता है लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू वर्कबुक इन द थंबनेल व्यू। फिर उसमें आप क्लिक करते हो ब्लैंक वर्कबुक पे, क्योंकि अगर आपको फ्रेश काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको ब्लैंक वर्कबुक ही चाहिए होगी, तो आप क्लिक करोगे ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन पे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी विद अ ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, अब वो सेव्ड तो नहीं होती है, तो टेम्परेली उसको नाम दिया जाता है बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको काम करते हो, उसको सेव करते हो, तो आप उसका नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारे MS Excel 2016 विंडो के। सबसे पहले हम शॉर्टकट के बारे में समझ लेते हैं। शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, Ctrl+N। अगर आपको न्यू ब्लैंक वर्कबुक खोलनी है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा Ctrl+N, तो आपकी ब्लैंक वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel विंडो। Microsoft Excel consists of the following components. Quick access toolbar, it contains commands that are frequently used like save, undo, redo, print, etc. क्विक एक्सेस टूलबार होती है ना बच्चों, ये आपकी कमांड्स, ऐसी कमांड्स को कनेक्ट करती है या कंटेन करती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होती है, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू, प्रिंट। टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये जो टाइटल बार है ये आपका जो वर्कबुक है उसका नाम तो ये डिस्प्ले कर रही होती है, साथ ही साथ ये 3 कंट्रोल बटन्स को भी डिस्प्ले कर रही होती है। रिबन, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स, 8 टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ईच टैब कंटेन्स कमांड इन डिफरेंट ग्रुप्स। रिबन में बच्चों आपके 2 पार्ट्स होते हैं और इसमें 8 टैब्स होते हैं जिसमें आपके तरह तरह के कमांड्स होते हैं। Cell name box, it displays the name of the active cell or cell reference. The column, letter and row number corresponding to the active cell is displayed in the cell name box. Cell name box जो है, जो भी आपका करंट सेल होता है, ये एक्टिव सेल होता है, उसको ये दर्शाता है, उसका नाम दर्शाता है। ठीक है, और जितने भी कॉलम लेटर्स होते हैं, रो नंबर्स होते हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं उस एक्टिव सेल के, वो भी ये दर्शाता है कहाँ पे, सेल नेम बॉक्स में। एक्टिव सेल, the selected cell is called the active cell or current cell. It displayed with bold border that differentiate it from the rest of the cell. Active cell वो सेल होता है जो आपका एक्टिव होता है, मतलब वो जिस पे आप काम करने वाले होते हो या अपना डेटा को क्या करते हो, एंटर करने वाले होते हो। ठीक है, इसको आप देखते हो, ये आपके बोल्ड जो ब्लैक कलर का बॉर्डर होता है उससे ये हाईलाइटेड होता है। सेल पॉइंटर, टू सेलेक्ट अ सेल यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। टैब or arrow keys on the keyboard can also be used to select the cell on the worksheet. To enter the data in a cell, you first need to select it. Cell pointer जो होता है वो आपके सेल को चूज़ करने के लिए या क्लिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अपनी वर्कबुक में डाटा डालना है तो आपको सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आपको डाटा क्या करना है, फिल करना है। फॉर्मूला बार, it displays the data and formulas that you enter in an active cell. It can also be used for entering or editing data, labels and formulas. फॉर्मूला बार जो होता है ये डिस्प्ले करता है आपके फॉर्मूला का, जो भी फॉर्मूला आपने किसी भी सेल में डाला होता है तो ये वहाँ पे अपीयर हो रहा होता है, और इसमें आप जो भी डाटा आपने एंटर किया है, फॉर्मूला डाला है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। रोज, these are horizontal lines of cells labeled as number 1, 2, 3, 4, 5 and so on.
रोज आपको पता ही चल गया, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं किसकी, सेल्स की, और इनको लेबल किया जाता है 1 to आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके द्वारा। कॉलम्स, these are the vertical lines of cells labeled using the letters A, B, C, D and so। तो बच्चों कॉलम्स जो होते हैं आपके, वो आपके वर्टिकल लाइंस ऑफ सेल होते हैं और ये लेबल होते हैं आपके सारे लेटर्स से, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये उनसे लेबल्ड होते हैं। शीट टैब, इट indicates the name of the worksheet and you can switch between the different sheets by clicking on it। शीट टैब जो होती है ये आपकी नंबर ऑफ वर्कशीट्स को दर्शाता है, ठीक है, और इसमें आप एक शीट से दूसरी शीट पे क्या कर सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट सिलेक्शन दैट इंक्लूड्स टोटल नंबर काउंट ऑफ सेल्स in the selection that contains the data average of the numeric values in the cells and sum of the numeric data in the cell। view buttons, zoom slider etc। स्टेटस बार जो होता है ये डिस्प्ले करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपकी करंट सिलेक्शन होती है, ठीक है, किसकी, सेल की, जिसमें आपका डेटा कंटेन होता है, एवरेज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन होती है, ठीक है, और सम ऑफ द न्यूमेरिक डाटा जो भी आप उसमें सेल में डालते हो। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। वर्कबुक, each Excel file is known as a workbook। It can hold many worksheets। The default workbook is book 1। तो बच्चों हर एक एक्सेल फाइल जो होती है वो आपकी वर्कबुक कहलाती है और वर्कबुक में आपकी बहुत सारी वर्कशीट्स आ जाती हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो एक वर्कशीट होती है उसका नाम बुक 1 रख दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। Worksheet, a worksheet is a collection of cells in the form of rows and columns। In MS Excel 2013, by default, there is one worksheet in a workbook। There are represented in the form of tabs above the status bar। अब worksheet क्या होती है, जितने भी आप डेटा सेल में एंटर करते हो in the form of rows and columns, तो वो आपका क्या कहलाता है, worksheet कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि MS Excel 2013 में by default there is one worksheet in a book। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, 2013 का जो MS Excel का प्रोग्राम था या जो वर्जन था उसमें आपकी एक ही वर्कशीट हुआ करती थी एक वर्कबुक में, ठीक है। कॉलम्स, कॉलम्स आर अरेंज वर्टिकली। देर आर रिप्रेजेंटेड एज लेटर्स फ्रॉम A to Z and then AA to AZ and so on। There is a total number of 16,384 कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं आपके वर्टिकली, ठीक है। अब ये प्रेजेंट किए जाते हैं आपके A to Z। अब A to Z तो आपके 26 लेटर खत्म हो गए, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये A B A C इस तरह से ये कंटिन्यू करते जाते हैं A Z तक और सो ऑन। तो बच्चों इसी तरह से वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे 16,384 कॉलम्स होते हैं। रोज, रोज आर अरेंज हॉरिजेंटली। दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10,48,576। The last row is 10,48,576। बच्चों रोज जो होती हैं वो आपकी हॉरिजेंटली होती हैं, ठीक है, और ये नंबर 1 से स्टार्ट होते होते ये आपके 10,48,576 नंबर तक जाती है। सेल, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ईच सेल कैन स्टोर अ सिंगल आइटम ऑफ डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, नंबर और अ फॉर्मूला। ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। सेल जो होता है ये आपका रोज एंड कॉलम्स के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, जो बॉक्स बना होता है छोटा सा, वो कहलाता है, ठीक है। अब आप जो डाटा डालते हो वो आप किस में डालते हो, सेल में ही डालते हो, और हर सेल जो है वो एक यूनिक एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। सेल रेफरेंस, cell reference is the column letter and the row number that identifies a single cell। For example, A1 is the cell reference of the selected cell in the worksheet। A cell reference can be thought of as a cell name। The address of the first cell in a worksheet is A1 and the last cell address is XFD 10,48,576। सेल जो होता है बच्चों ये आपका रेफर करता है आपके कॉलम लेटर और आपके रो नंबर्स को, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल सेल को, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया गया है, A1 इज द सेल रेफरेंस ऑफ सेलेक्टेड सेल इन द वर्कशीट, ठीक है। सेल रेंज, सेल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेल्स, सेल्स एडजेसेंट टू ईच अदर। A cell range name consists of the cell address of the first cell, a colon, and the last cell address. For example, B to C4.
द स्मॉलेस्ट रेंज इज अ सिंगल सेल एंड द लार्जेस्ट रेंज इज एन एंटायर वर्कशीट। सेल रेंज जो होती है वो आपके ग्रुप ऑफ कॉन्टेजियस सेल होते हैं, ठीक है। एक सेल रेंज में आपके नेम आते हैं किसके, सेल एड्रेस के ऑफ द फर्स्ट सेल। अब इसमें आपके कॉलन एंड द लास्ट सेल एड्रेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल B2 सेमी कॉलन बीच में और आपका C4 करके इस तरह से ये लिखा जाता है। नाउ सेलेक्टिंग डिसेलेक्टिंग सेल रेंज। टू सेलेक्ट अ सेल, पोजीशन माउस पॉइंटर ऑन द सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट एंड click on it. To select an entire column, click on the column heading of the column that you want to select. ठीक है, यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि कैसे आप एक सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को उस सेल के ऊपर लेके जाना है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो और फिर आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, क्लिक करोगे। अगर आप एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्लिक करना होगा कॉलम की जो हेडिंग होती है वहाँ पे। तो इस तरह से आप देखोगे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी कॉलम जो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। शॉर्टकट, टू सेलेक्ट अ सेल प्रेस एनी रिक्वायर्ड एरो की अप डाउन लेफ्ट और राइट। अगर आपको किसी सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पे एरो की को प्रेस करना होगा जो कि आपकी अप, अगर आपको अप वाले सेल को सेलेक्ट करना है तो आप अप की तरफ जाओगे, अगर आपको नीचे की तरफ सेल को सेलेक्ट करना है तो आप नीचे की तरफ जाओगे। शॉर्टकट, टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आपको पूरी कॉलम को, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो होता है, जो बड़ा सा बटन होता है, उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, प्रेस करोगे। To select an entire row, click on the row heading of the column that you want to select. अगर आपको किसी रो को, पूरी रो को, एंटायर रो को सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली उसकी हेडिंग पे जा करके क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आपकी पूरी रो जो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। नाउ शॉर्टकट, टू सेलेक्ट एन एंटायर रो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो बच्चों अगर आपको एंटायर रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है। सबसे पहले आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, उसके बाद आप प्रेस करोगे स्पेस बार को, तो आपकी एंटायर रो जो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम B to C4। फर्स्ट क्लिक ऑन द सेल B2, सेकेंड क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द सेल C4, थर्ड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया अगर आपको किसी सेल की रेंज को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे करना है। सपोज आपको B2 से C4 तक सेलेक्ट करना है, जितने भी आपके सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, तो आपको पहले क्लिक करना होगा B2 पे, ठीक है। फिर आप क्लिक करके लाओगे अपने माउस को और ड्रैग करते हुए इसको कहाँ लेके जाओगे, C4 पे लेके जाओगे, ठीक है। और फिर आप जब अपने बटन को रिलीज कर दोगे तो आप देखोगे आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। Fact, to select a range of cells using keyboard, select the first cell of the range, press shift key and move to the last cell of the range using the arrow keys. अब यहाँ पे शॉर्टकट बताया गया है कि कैसे आप किसी सेल की रेंज को कीबोर्ड पे प्रेस किए हुए कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेल को, जो सेल है, फर्स्ट सेल है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे ऑफ द रेंज, ठीक है। फिर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट की को और आप मूव करते हुए लेके जाएंगे जहां तक आपको सेल चाहिए सेलेक्ट होने को, ठीक है। तो आप मूव करने के लिए क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट या डाउन जो की है उसको सेलेक्ट करेंगे। नाउ टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट, क्लिक एट क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो ऑन कॉलम हेडिंग। अगर आपको पूरी सेल को, सारे के सारे सेल को सेलेक्ट करना है एक वर्कशीट में तो आप क्लिक करेंगे क्रॉस सेक्शन पे ऑफ द रो ऑन कॉलम हेडिंग। शॉर्टकट, टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट, कंट्रोल प्लस ए। अब इसका एक शॉर्टकट भी दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस ए करेंगे प्रेस, तो आपके सारे के सारे सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। टू सेलेक्ट रेंजेस ऑफ सेल्स नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर आपको सेल की रेंजेस को सेलेक्ट करना है, ना कि उनके बगल वाला सेल, मतलब एक सेल को बीच में से छोड़ना है फिर आपको दूसरी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल। इसके लिए आपको पहले तो आप फर्स्ट रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आप प्रेस करके रखोगे और होल्ड करके रखोगे कंट्रोल की को, उसके बाद आप नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। नोट,
टू डीसेलेक्ट सेल्स क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट। अब यहाँ पे बताया गया है कि सिंपल तरीका, अगर आप सेल को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली कहीं पे भी अपनी वर्कशीट पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स। फीचर, मैक्सिमम लिमिट opens workbooks depends on available memory and system resource. Total number of worksheets in a workbook depends on available memory and system resource. Default is 1 sheet. Total number of rows in worksheet 10,48,576. Total number of columns in worksheet 16,384 XFD. Total number of characters that a cell can contain 32,767 characters. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि MS Excel की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, ठीक है। वो क्या क्या हैं, जैसे कि अगर आप किसी वर्कबुक को ओपन करना चाहो तो अगर वहाँ पे आपके सिस्टम में स्पेस होगा, मेमोरी होगा, तो ही वो वर्कबुक को ओपन कर पाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट इन वर्कबुक डिपेंड करता है अवेलेबल मेमोरी में, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम रिसोर्स में होती है। टोटल नंबर ऑफ रोज इन वर्कशीट, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कशीट बताई गई है कि आप इतने नंबर ऑफ वर्कशीट में क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ रोज में आप काम कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आप इतने नंबर ऑफ कॉलम्स पे ही काम कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि इतने दिए गए हैं, तो आप इतने कैरेक्टर्स एक सेल में डाल सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। नाउ टू नेविगेट बिटवीन द सेल्स इन वर्कशीट, अगर आपको सेल्स के बीच में नेविगेट करना है तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स या कुछ कमांड्स दी गई हैं। फंक्शन, मूव्स वन कॉलम राइट, कमांड राइट कमांड, ठीक है। मूव्स वन कॉलम लेफ्ट, लेफ्ट कमांड। मूव्स कॉलम अप, अप कमांड। मूव्स one column down, down command. Moves the last cell of the current row, control plus right arrow. Moves the first cell of the current row, control plus left. Moves the last cell of the current column, control plus down arrow. Moves the first arrow of the current column, control plus up arrow. Moves the last cell of the current worksheet, control plus down plus right, or control plus right plus down. Moves the first cell of first row in the worksheet, control plus home. Moves the last used cell on a worksheet, control plus end. Fact, by default numbers are right aligned while text is left aligned in a cell. मुझे यहाँ पे बताया गया है कि वर्कशीट में जब आप नंबर टाइप करते हो तो वो आपके सेल में राइट की तरफ आते हैं, ठीक है। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो लेफ्ट की साइड आते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होता है। नाउ एंटरिंग डाटा, लेट्स स्टार्ट एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। द स्टेप्स टू एंटर द डेटा इन अ वर्कशीट आर: क्लिक ऑन D1 cell and type world ranking. Second, click on A2 cell and type team, press right arrow key and type cricket in B2 cell. Likewise, type football in C2 cell and tennis in D2 cell. Third, click on A3 cell and type India and press enter key. The cell pointer shifts to cell A4. Fourth, type Bhutan in cell A4, similarly entering the remaining data. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप वर्कशीट में अपने डाटा को क्या कर सकते हो, फीड कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप D1 जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप टाइप करेंगे वर्ल्ड रैंकिंग। उसके बाद आप क्लिक करेंगे A2 सेल पे, ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पे टाइप करेंगे टीम। फिर आप राइट की तरफ प्रेस करते जाएंगे एरो की से और फिर आप वहाँ पे टाइप करेंगे क्रिकेट इन B2 सेल, और इसी तरह से आप फुटबॉल C2 में करेंगे और टेनिस करेंगे D2 सेल में। फिर आप वापस से क्लिक करेंगे A3 सेल पे, ठीक है, और टाइप करेंगे इंडिया और फिर आप प्रेस करेंगे एंटर की। जो आपका सेल पॉइंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके कहाँ पे, A4 सेल की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तो बच्चों जब आप A3 से A4 पे जाएंगे तो आप वहाँ पे टाइप करेंगे भूटान, ठीक है, और सिमिलरली आप जो आपका बाकी का डाटा है वो आप एंटर करते जाएंगे। एडिटिंग सेल कंटेंट डेटा, द डेटा एंटर्ड इन द सेल इन अ वर्कशीट कैन बी एडिटेड लेटर। The steps to edit the data in a cell are: double click in a cell to edit the data in it, or click in the cell and press F2 function key, now edit the data,
और सेलेक्ट द सेल एंड एडिट द डेटा इन द फॉर्मूला बार। ठीक है, आप बच्चों इन स्टेप्स के थ्रू अपने डेटा को एडिट भी कर सकते हो। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है उस सेल पे जिसका डेटा आप एडिट करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी हमसे क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए उसे क्या करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, तो आप उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो इससे भी आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और आप क्लिक कर सकते हैं उस सेल पे और फिर आप प्रेस करेंगे F2 फंक्शन की, और उससे भी आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन है, आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपने फॉर्मूला बार में जाकर भी अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका सेल में जो डेटा एंटर्ड होता है वो आपके फॉर्मूला बार में भी सेम टू सेम नज़र आता है, तो आप वहाँ पे भी जाकर उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नोट, टू डिलीट द डेटा इन अ सेल प्रेस द बैकस्पेस की और डिलीट की। To replace a part of existing data, select the part of the existing data, number, letter, type the new content. To insert new content in the existing data, click and position the insertion point and type the new content. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हो किसी सेल से, तो आप वहाँ पे बैक स्पेस की और डिलीट की भी जाके प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हो अपने डेटा में, तो आप उस पार्ट को पहले तो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आप टाइप करेंगे न्यू डेटा को। फिर आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं न्यू कंटेंट इन द एग्जिस्टिंग डेटा, देन यू विल क्लिक एंड पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट एंड टाइप द न्यू कंटेंट। तो इससे आपका न्यू कंटेंट वहाँ पे टाइप हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी, ओपन MS Excel and do the following. You generally visit the market with your parents to purchase the household goods. Now make a list of any 10 household goods with their price per unit. Click on C1 cell and type price list of household goods. 4. Save the workbook with name household goods. बच्चों ये आपको एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको अपने कंप्यूटर पे MS Excel की जो वर्कबुक होती है उसे ओपन करना है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप मार्केट जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप वहाँ से क्या क्या सामान लाते हो, क्या क्या चीज़ें खरीदते हो अपने घर के लिए, उसकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको ज़्यादा लिस्ट नहीं बनानी, आपको सिर्फ 10 आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट का नाम, उन जो सामान का नाम है वो आपको कहाँ पे फिल करना है, अपनी वर्कबुक में फिल करना है विद देयर प्राइस लिस्ट, मतलब किस सामान की कितना प्राइस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिर आप इस वर्कबुक को सेव कर दोगे हाउस होल्ड गुड्स के नाम से। नाउ सेविंग अ वर्कबुक, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क इन द वर्कशीट, लेट्स सेव द फाइल। The steps to save the workbook are: Step 1, click on File tab. Second, click on Save As option. The Save As pan appears on the right of the window. To save the file in local memory drive, click on Computer if not selected, and then on Browse button. The Save As dialog box appears. Fourth, enter the file name in the File Name text box. Fifth, select the location to save the file. Sixth, click on Save button. The workbook file is saved. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको फाइल सेव करने का तरीका बताया गया है कि कैसे आप स्टेप वाइज से अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, उसके बाद आप सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। सेव एज पैन जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा ऑन द राइट ऑफ द विंडो, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है। फिर आप कंप्यूटर पे, अगर आप कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। देन आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आप अपनी फाइल का नाम एंटर करेंगे और आप जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी अपनी फाइल को सेव करने की, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे। तो इस तरह से आपकी वर्कबुक जो है वो सेव हो जाएगी। शॉर्टकट टू सेव अ वर्कबुक, Ctrl+S, ठीक है। अगर आप इतने स्टेप्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S टाइप करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। क्लोजिंग अ वर्कबुक, you have completed the work and saved the workbook. Now close the workbook, not the Excel window. The steps to close a workbook are: click on File tab. Second, click on Close. अब बच्चों आपने अपनी वर्कबुक पे काम कर लिया, अब आपने उसको सेव भी कर लिया, तो आप उससे एग्जिट होना चाहते हो तो कैसे होगे, तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, फाइल टैब पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लोज पे, तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी।
नाउ ओपनिंग अ वर्कबुक। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिया गया है आपकी वर्कबुक को ओपन करने का। क्या दिया गया है? टू ओपन अ वर्कबुक Ctrl+O, ठीक है। अगर आप अपनी वर्कबुक को ओपन करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। You know that once you have saved a file, you can open it later. The steps to open an existing workbook are: first, click on File tab, the Backstage view appears. Second, click on Open option. Third, the Open pane appears on the right of the window. If the required file is listed in Recent Workbook section, click on it or click on Computer. Fourth, click on Browse button. The Open dialog box appears. Select the location where the required file is saved. Select the file, click on Open button. अपनी फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब पे जाना है, ठीक है। आपके सामने एक बैकस्टेज व्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद ओपन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपके विंडो के राइट साइड में एक पैन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड होगा, आपकी फाइल का नाम वहाँ पे लिस्टेड होगा तो आप वहाँ से अपनी फाइल का नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, फिर आप ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आपको लोकेशन को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को क्या किया था, सेव किया था। उसके बाद अपनी फ़ाइल को आप वहाँ पे ढूंढोगे, उसे सेलेक्ट करोगे और फिर आप क्लिक करोगे ओपन बटन पे। एडिंग अ न्यू वर्कशीट। As you know, by default, only one worksheet is provided by MS Excel 2016 when you open a new blank workbook. The steps to add more worksheets in the workbook are: click on New Sheet icon plus located next to Sheet 1 tab or right click on the Sheet tab. Select Insert option in the context menu. The Insert dialog box appears. In General tab, select Worksheet icon. क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको बताया गया कि कैसे आप अपनी वर्कशीट में एक न्यू वर्कशीट को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल के तरफ से एक ही शीट जो है वो प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैसे न्यू ब्लैंक शीट को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप क्लिक करोगे शीट टैब पे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आपके सामने एक इंटेक्स डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जनरल टैब में जाएंगे, उसके बाद आप वर्कशीट आइकन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, Shift+F11। अब यहाँ पे बच्चों शॉर्टकट की दी गई है कि कैसे आप अपनी वर्कबुक में वर्कशीट में एक न्यू शीट ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको Shift+F11 को, F11 जो आपकी फंक्शन की होती है ना, उसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है शिफ्ट की के साथ। नाउ रीनेमिंग अ वर्कशीट। द स्टेप्स टू रीनेम अ वर्कशीट इन द वर्कबुक आर: डबल क्लिक ऑन द शीट टैब दैट यू वांट टू रीनेम और राइट क्लिक ऑन शीट टैब एंड सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन इन द context menu. It will be highlighted. Second, type a new name and press enter key. अगर आपको अपनी वर्कशीट का नाम चेंज करके उसे रीनेम करना है तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप शीट टैब पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसको आप रीनेम करना चाहते हो, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे अपनी शीट टैब पे एंड सेलेक्ट करेंगे रीनेम ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फिर वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वहाँ पे न्यू नेम टाइप करेंगे और फिर आप एंटर की प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। नाउ डिलीटिंग वर्कशीट। टू डिलीट अ वर्कशीट, होम टैब, डिलीट बटन ड्रॉप डाउन, डिलीट शीट ऑप्शन और राइट क्लिक ऑन शीट टैब, सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। अगर आपको अपनी वर्कशीट को डिलीट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको होम टैब में डिलीट बटन ड्रॉप डाउन पे जाना होगा, ठीक है। फिर डिलीट शीट ऑप्शन पे आपको जाना होगा। उसके अलावा आप एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट क्लिक करेंगे आप शीट टैब पे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन को, तो आपकी फाइल जो है या आपकी वर्कशीट जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। Microsoft Excel is a spreadsheet program. Each Excel file is known as a workbook. A worksheet is a collection of cells in the form of rows and columns.
A cell is the intersection of rows and columns. Cell reference is the column letter and the row number that identifies a single cell. Cell range is a group of contiguous cells, cell adjacent to each other. 3 types of data can be entered in MS Excel: text, labels, numbers, values and formulas. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.